यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से प्रोवर्ब्स 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे चैप्टर 8। Of wisdom its excellency, riches, eternity and desirableness. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Doth not wisdom cry, and understanding put forth her voice? She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. Unto you, O men, I call, and my voice is to the sons of man. O ye simple, understand wisdom, and ye fools, be ye of an understanding heart. Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be right things. For my mouth shall speak truth, and wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are in righteousness. There is nothing froward or perverse in them. They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver and knowledge, rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. I, wisdom, dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Counsel is mine, and sound wisdom. I am understanding, I have strength. By me kings reign, and princes decree justice. By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. My fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice silver. I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the water, of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the depth, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, then I was by him as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Hear instruction, and be wise, and refuse it not. Blessed is the man that beareth me.
watching daily at my gates, waiting at the posts of my door. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. Chapter 9, Discipline and Doctrine of Wisdom, Custom and Error of Folly. First verse से पढ़ेंगे. Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her 7 pillars, she hath killed her beasts, she hath mingled her wine, she hath also furnished her table, she hath sent forth her maidens, she crieth upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanteth understanding, she said to him, Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled. Forsake the foolish, and live, and go in the way of understanding. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself. But if thou scornest, thou alone shalt bear it. A foolish woman is clamorous, she is simple and knoweth nothing. For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city, to call passengers who go right on their ways. Whoso is simple, let him turn in hither. And as for him that wanteth understanding, she said to him, Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. But he knoweth not that the dead are there, and that her guests are in the depths of hell. नीति वचन पढ़ेंगे. 8 अध्याय 9 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. नीति वचन 8. बुद्धि की प्रशंसा में. पहले वचन से, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है. हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो. सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी, और जब मुँह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा. दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है. मेरे मुँह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है. समझ वाले के लिए वे सब सहज, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है. चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है. मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ. यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है. घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ. उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है. मैं तो समझ हूँ, और पराक्रम भी मेरा है. मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं.
मेरे ही द्वारा राजा, हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। 22 वचन से आगे, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब न तो गहरे सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र को की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगरी से उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरे सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरे सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। बुद्धिमानी और मूर्खता। 9 अध्याय पहले वचन से, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियों और सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्म को चिता दे, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बक बक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई
जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कह कर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे के रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता है कि वह मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुँचे हैं। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 20 चैप्टर 9 वर्स से 18 वर्स, 1 सैमुअल 20 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 9 वचन से 18 वचन। पहले शमूएल की पुस्तक 20 अध्याय। हम 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे, और जब हम अपने व्यक्तिगत समय में 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ रहे होते हैं तो अपने पर्सनल टाइम में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये वचनों के भेद पहचानने लगेंगे। ये बहुत गहरे भेद हैं, और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो बाहरी तौर से हम इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये केवल पवित्र आत्मा समझाता है। हमको अकेले में आराम से समय देना है ये वचनों को समझने के लिए, और बहुत बड़ा समय नहीं लगता है, बस कुछ समय लगता है और वचन आ जाएंगे अपने अंदर। फिर उसका हमको एक प्रकार से परमेश्वर का आत्मा मनन कराता है अंदर ही अंदर, और ज़्यादा उसके विषय में बातें करता है। उसको हमने नोट्स बना कर लेना है, और ऐसा ही करते हुए हमने उसको अपने आज्ञा पालन में लेते हुए चलना है। जैसे ही हम ऐसे करते हुए जाएंगे, 2 साल के अंत में देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत ज़्यादा अधीनगी में आ चुके होंगे, और पूर्ण रूप से हम परमेश्वर का आत्मिक जीवन का लाभ उठा पाएंगे, और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर पाएगा। और ऐसा ही होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है, और जैसे ही हम ये समय को ख़त्म करेंगे, हम परमेश्वर के वचन का व्यक्ति होकर निखर कर आ जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम अपने मन से इस बात को नहीं समझ सकते हैं जो हम बोलते हैं खुदा, जो हम समझाते हैं। केवल पवित्र आत्मा तो समझ खोल के हमको उस रास्ते से लेकर जा सकता है। वो रास्ता हमारे लिए तो बंद मत कर, जिसमें से हमको ये सारी बुद्धि की बातें हैं, समझ की और ज्ञान की बातें हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बनता है। खुदा परमेश्वर बिगड़ता नहीं है, बनता है। पिता, ऐसे अच्छे समयों को हमसे दूर मत रख। हम तुझसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा अपने आप को और ज़्यादा हम में लेकर आ, ताकि हम ये वचनों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।